Very good morning. So in your previous class, we had discussed about how the British or how the company had started setting up a new administration, and in this process of setting all these say administration, what the first thing was done, that the entire empire was divided into smaller administrative units which were known as the presidencies. उसे एडमिनिस्ट्रेशन कंफर्टेबली चलाने के लिए और पूरे जो भी इनका एम्पायर था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग डायरेक्शंस में बनाए गए, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, एंड दीज वर द नोन एज द प्रेसिडेंसीज, and these presidencies were ruled by governor, and the supreme head of the administration was the governor general. And at that time, Warren Hastings, he had been the first governor general, and he had introduced many of the administrative reforms. And in this process of administration, the you can say the new justice system was established, and each district was having 2 courts, a criminal court and a civil court. आज के टाइम पे भी हमारे पास ऐसे ही कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, right? And at that time, these Maulvis and Hindu Pandits, they were asked to frame the Indian laws. अब हिंदू रिलीजन में समय क्या हुआ कि जो पंडित थे जिन्होंने लॉ बनाना था, तो they were having many, they must have you can say got their education from many different type of dharma shastra. So there was a difference in opinions of these pandits who were asked to frame the Indian laws. So what had been done at that time, that a committee of few pandits was formed, that was 11 pandits, and now they were asked to compile a digest of Hindu laws. जब ये हिंदू लॉज बन गए अकॉर्डिंग टू द हिंदूज एंड द जो मुस्लिम मौलवीज थे उन्होंने भी अपने लॉज बना लिए, उसके बाद दीज लॉज वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, right? And in this process a new supreme court was also established in 1773 in कोलकाता. उसके बाद जब ये हमारी कैपिटल जो थी, जब कोलकाता से शिफ्ट हो गई, तब ये जो सुप्रीम कोर्ट था दैट वाज आल्सो शिफ्टेड टू दिल्ली. और इस टाइम पे भी जो कलेक्टर होता था, ही वाज हैविंग द मेन जॉब ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड टैक्सेस and also maintain law and order. You are supposed to underline this, that his main job of the collector was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. Means अपने जो एरिया है उसमें इन्होंने पीस मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, and they got the help of the judges, police officers and the darogas. So ये इनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था. और ये जो ऑफिस था ना कलेक्टर का, वो एक आप कह सकते हैं कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक ऑफिस जो था उस समय बन चुका था. ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेशन का एक और पार्ट था इन कंपनी की आर्मी. दिस वी हैड स्टार्टेड इन द प्रीवियस क्लास कि कैसे जो आर्मी थी ये उस समय की बनाई गई थी, कि ये जो कंपनी था थे ना, ये लोग अपने से कि दे वर मोर एंड मोर concerned about their military, and they were rather were very proud and very confident of their military strength. इससे पहले तक क्या था कि जो मुगल आर्मी थी that was based on the cavalry. cavalry क्या होते हैं? trained soldiers on horseback. हिंदी में हम उसे कहते हैं घुड़सवार, राइट? तो उस समय क्या था कि जो घुड़सवार थे वो ही मेन आर्मी में होते थे मुगल्स की. तो मुगल्स ने भी कैवलरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और जो पैदल सोल्जर्स होते थे जिसे हम इन्फेंट्री भी कहते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था. वो सिर्फ दे वर लिमिटेड टू द यूज ऑफ स्वॉर्ड एंड द आर्चरी, whereas the cavalry they had that had dominated the army of Mughals.
जब ये कंपनी यहाँ पर आई है तो उन्होंने पहले जो आर्मी थी उसके ऊपर भी वर्क करना शुरू कर दिया एंड what they had started doing, they had started recruiting the local people. आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है कि जो मुगल्स थे वो क्या करते थे कि अपने जो लोकल लोग थे उन्हें अपनी आर्मी में रखते थे सो दैट इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू कंट्रोल दीस पीपल, राइट. तो इवन जब कंपनी यहाँ पर आई तो कंपनी वालों ने भी सेम चीज ही करनी शुरू कर दी. दे हैड स्टार्टेड रिक्रूटिंग द पीपल and these local people, they were known as the sepoy या सिपाही. इसके साथ ही जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी थी वो भी चेंज की गई. चेंज इन द सेंस दैट नाउ मोर ऑफ द गन पाउडर वाज यूज्ड और कुछ गन्स जो थी वो भी अलग तरीके की यूज हुई, जैसे कि मस्केट थी. मस्केट इट वाज अ वेरी हेवी गन दैट वाज यूज्ड बाय द इन्फेंट्री सोल्जर्स. उसके बाद इन्होंने मैच लॉक का इस्तेमाल किया. मैच लॉक क्या था? दैट वाज एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन व्हिच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय द मैच. ऐसी गन होती थी जिसमें पहले उसमें पाउडर डाला जाता था और उस पाउडर को फिर ऐसे आग लगाई जाती थी, राइट. सो दिस टाइप ऑफ से आर्मी वाज देयर और आर्मी जो थी सब इसको बहुत ज्यादा ट्रेन किया जाना था. A good training was given to them. A military, you can say, uniform military culture was even being followed. How it was followed? That the sepoys or the soldiers, they were increasingly subject to European style training. उन्हें European style की training दी गई, जिसमें major क्या चीज होती थी? That the discipline was very much required. Drill and discipline that regulated their life more than before, right. यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग जिसमें कि जो वेपन्स होते थे वो चलाना सिखाया जाता था. ड्रिल होती थी. ड्रिल मींस रेगुलर प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस ऑफ रनिंग और यूजिंग दीज वेपन्स. एंड द डिसिप्लिन, एज मैंने मेंशन कि डिसिप्लिन वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग और द कंपनी आर्मी. और इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई, और ये सिर्फ इस समय की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंट्री में वैसे ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि द कंट्री इट इज डिवाइडेड इन मेनी ऑफ द कास्ट एंड द creeds and they always are having they can say conflicts with each other. ये जो कास्ट है या रिलीजन है जो कि बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, that had always created the problems. So same was there at that time also कि ये जो कास्ट है, कम्युनिटी फीलिंग्स है. अब जो कंपनी वाले थे they were not familiar with these things. ये एक्चुअली इतनी वैरायटी जो है ना हमारी कंट्री में ही है. अगर आप लोग बाहर की कंट्री में देखिए, अगर आप यूरोप में भी देखिए तो इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ पीपल नहीं है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस नहीं है, राइट. सो ये जो चीजें थी हमारी ही कंट्री में थी. सो ये अब एज आई सेड कि द यूरोपियंस दे वर नॉट फैमिलियर विद दीस टाइप ऑफ थिंग्स, सो दे हैड इग्नोर्ड इट. उन्होंने इन चीजों को इग्नोर किया. उन्होंने सारे ही लोकल लोग जो थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, और उन्हें अपनी आर्मी में रिक्रूट कर लिया और उन्हें एक साथ ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दिया. दे वर नॉट अवेयर कि हमारे कंट्री में उस समय भी ये कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा प्रेवलेंट था कि द डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल दे डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद ईच अदर. रिलीजियस जो फीलिंग्स थी लोगों की वो भी ध्यान में नहीं रखी गई. इसका नुकसान क्या हुआ यूरोपियंस को? दैट at a later stages in 1857 the soldiers had revolted against the British. क्यों? क्योंकि उनकी जो रिलीजियस फीलिंग्स थी या कास्ट की फीलिंग्स थी वो यूरोपियंस ने बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखी, ब्रिटिशर्स ने ध्यान में नहीं रखी. They had started recruiting and giving the training to these people together. So that for that they had to suffer. The British had to suffer in 1857, where the Indian soldiers they had revolted. Right? अब ये revolt वाला जो चैप्टर है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. It is there in your syllabus itself. Now what we can conclude after going through the entire chapter
that the East India Company, you can underline this, the conclusion is that the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. हमने ये पढ़ा कि कैसे जब ब्रिटिश आए तो कैसे वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, but now they had become a territorial colonial power. Here, yeah, you have to be very aware of few of the terms. Colony, colonial power. Right? What is colony? What is the colonial power? अब अगर हम लोग इसको ब्रिटिश के कंसर्न में देखें, colonial powers क्या होती थी? Those very bigger countries or the stronger countries who extended their control or the territories over the weaker countries, right? अब हम अगर हमारे केस में बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे, they were the colonial power. Britishers, they were the colonial power, right? Whereas India was a colony of Britishers, right? India was the colony of Britishers, whereas Britishers were the colonial power. ये आपको याद रखना पड़ेगा, because अब आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थ्रू आउट आप कॉलोनी, कॉलोनियल पावर, इन सभी चीजें जो है आपके पास जो वर्ड्स हैं ये आते रहे, राइट? एंड as mentioned कि it was not only that they only had transformed to the colonial power, but अब एक टेक्नोलॉजी जो थी वो भी हमारे पास आनी शुरू हो गई. Till now we were not very much aware of the technology. Major technology कौन सी है? Steam technology. Steam technology, steam engines, right? ये हमारे पास यूरोपियंस ही लेकर आए थे. इससे पहले तक क्या होता था कि आर्म शिप्स, जो कॉमन शिप्स होती हैं, उसमें बाई सी अगर जाना होता था तो इट यूज्ड टू टेक अराउंड 6 to 8 months टू मूव एनीवेयर, राइट? मिनिमम हम बता रहे हैं. लेकिन जब ये स्टीम शिप्स आए, स्टीम इंजन्स आए, तो इट हैड रिड्यूस्ड द जर्नी टू 3 weeks. उससे फायदा क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, राइट, पहले क्या था, जब इंग्लैंड से इंडिया आना है तो 6 से 8 महीने लग जाते थे जब स्टीम इंजन नहीं बने थे. बट आफ्टर द स्टीम इंजन्स वर इन्वेंटेड, नाउ द टाइम वाज रिड्यूस्ड टू 3 weeks. आप थोड़ा सा देखिए कहाँ 8 months है, कहाँ 3 weeks है. तो इससे फायदा क्या हुआ कि नाउ द ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज कुड इजीली कम टू इंडिया, राइट, एंड दे कुड आल्सो गो बैक टू देयर ओन कंट्री. टू एंड फ्रो जो था इंग्लैंड से इंडिया का बहुत ज्यादा इजी हो गया था, बहुत कम टाइम भी लगता था. एंड द डाटा सेज by 1857 company had taken the direct rule over 63% of the territory. मतलब हमारी पूरी कंट्री का 63% जो था by 1857 ब्रिटिशर्स के अंडर था, और हमारी टोटल पॉपुलेशन का 78% was there under the British. So हम कह सकते हैं, I mean a very good percentage of the territories and population was under the British. और इसके इतनी सारी पॉपुलेशन को जो ब्रिटिश है वो बड़ी ही इजीली कंट्रोल कर रहे थे. तो अगर देखा जाए कि बहुत ज्यादा एरिया भी ऐसा नहीं था जो इनके अंडर कंट्रोल नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं कि अराउंड पूरा इंडिया ही जो था वो इनके कंट्रोल में था, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली द स्लेव ट्रेड हैड आल्सो बीन देयर. ये आपको एल्सवेयर में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज आपके लिए जानना जरूरी है कि जो ब्रिटिश थे, दे हैड नॉट ओनली कंट्रोल्ड इंडिया, they even had control over many other countries. सिर्फ इंडिया ही उसकी कॉलोनी नहीं थी, even South Africa was also the colony of British. So the Dutch trading ships reached southern Africa in the 17th century.
Soon a slave trade began. People were captured, chained, and sold in slave markets. When slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape, located at the southernmost tip of इंडिया एनी हाउ ये एक स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा कॉमन था अफ्रीका में और लेटेस्ट स्टेजेस में से तो इंडिया से भी लोग जो थे वो भी एज अ स्लेव दे वर टेकन टू साउथ अफ्रीका एंड इवन उसके बाद एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया था दैट वाज देयर बिटवीन द यूरोप अमेरिका राइट एंड अफ्रीका इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट हो चुका था जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे right. So here we come to the end of the chapter and then we will discuss the exercise.